students. Today I am going to explain the next topic, indicating or stating the role of water in dissociation of an acid. What is the role of water in dissociation of acid? As we have discussed earlier in the properties of acid, that acid when dissolved with water it produces respective hydrogen ions. So this property to produce hydrogen ions of the acid is shown only when this acid is diluted with water. Clear? Now by an experiment we are going to explain the nature of this HCl or nature of any acid in presence or in absence of water. So in this case we will take sodium chloride in a test tube and we will add concentrated sulfuric acid to the sodium chloride. Now we observe that it produces substance or the salt called as sodium hydrogen sulfate with evolution of a gas named as hydrogen chloride gas. The gas observed here is like this. In this test tube we have taken NaCl solution and we added concentrated sulfuric acid to it. Now we observe that in this case after the reaction mixture goes on mixing it produces a gas named as HCl gas. Now test the presence of this gas or test the nature of this gas by using litmus paper. Now we will check the acidic nature of this HCl gas by using litmus paper. Now we know that HCl can be tested by using litmus paper. We can use blue litmus paper or red litmus paper, but the most preferred here is blue litmus paper because if the solution is acidic it will changes to red. So blue litmus paper is taken. Now this blue litmus paper is taken near the mouth of this test tube. When this HCl gas strike this litmus paper we observe that the blue litmus paper does not changes to रेड. अब यहाँ पर रेड कलर इसमें ऑब्जर्व नहीं हुआ. इसका मतलब HCl गैस ने अपना एसिडिक नेचर यहाँ पर शो नहीं किया. तो हम क्या करेंगे, सेकंड केस में जो लिटमस पेपर हमने यहाँ पर यूज़ किया है इस पेपर को हम वेट करेंगे. नाउ वी आर यूजिंग इन द फर्स्ट केस वी हैव यूज्ड ड्राई लिटमस पेपर. इन द सेकंड केस वी विल यूज वेट ब्लू लिटमस पेपर. नाउ इट इज़ वेटेड बाय यूजिंग वाटर. अगर हम वेट पेपर को यूज़ करते हैं तो बाहर से रिएक्शन कंडीशंस फॉलो करते हैं तो जो गैस प्रोड्यूस होगी व्हेन दिस गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक दिस मॉइस्ट लिटमस पेपर इट वाज ऑब्जर्व दैट दिस मॉइस्ट blue paper will changes to red, indicating that the gas produces or the substance which produces here contains hydrogen ions and these hydrogen ions are dissociated when वी विल यूज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट. जब भी हम वाटर को यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर जब भी हम वाटर को यूज़ करेंगे यहाँ पर टेस्टिंग के लिए तो उस केस में जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट है, अगर इसी सेम गैस को हम टेस्ट करते हैं वी कैन आल्सो टेस्ट इट एज, अगर जो वेपर्स प्रोड्यूस जिसको किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में कैप्चर किया है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl प्लस water. Now it gives H positive aqueous plus Cl negative aqueous. This HCl gas produced here if is collected to some other test tube by using delivery tube and to that respective delivery tube if water is added then such type of observation is observed. In this case we observed that when HCl gas is mixed with water it produces hydrogen ion and these hydrogen ions are responsible for the acidic nature. These are responsible for acidic nature of HCl. So in the second case HCl gas itself does not produce H positive and Cl negative. So this reaction is not possible क्योंकि यहाँ पर aqueous phase present नहीं है. Next है, if this HCl gas is mixed with benzene or toluene, अगर हमने solvent यहाँ पर benzene या toluene यूज़ किया है in this case dissociation of HCl into H positive and Cl negative again cannot takes place. Clear? So we can say that HCl will dissociate to produce the respective H positive and Cl negative ions when it is added with or when it comes in contact with water. Only then it produces hydrogen ion and these H positive ions shows the acidic nature of the respective substance. Clear है point. Next है dissociation of HCl into H positive Cl negative ions in presence of water. How it will dissociate into respective ions,
it is shown here as these are H positive and these are Cl negative ions. When mixed with water, it is surrounded by water molecules. In this case, these are the H positive Cl negative ion which will split into ions in presence of water. Therefore, it indicating that these are being polar, hence pulls the H positive and Cl negative apart. अब जो वाटर के पार्टिकल्स इसका नेचर कैसा होगा, पोलर, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पुल करेंगे. एज a result, the negative part of water, that is oxygen, pull H positive ion towards itself, whereas the H positive ions of the water molecule attract the Cl negative ion towards itself. As a result, following two observations are observed here, that hydrogen ion is surrounded by water molecule negative part and Cl negative is surrounded by positive part of water molecule. As a result, जो भी हमारे पास वाटर मोलिक्यूल्स हैं, वो वाटर मोलिक्यूल्स इन दोनों आयंस के सराउंडिंग में एक एनवलप कवर करेंगे, एक शीट बना देंगे, एक कवरिंग शो करेंगे. क्लियर है. जिसके बाद अगर मोलिक्यूल स्प्लिट हो गया तो दोबारा से उसका कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर है. देयरफॉर H पॉजिटिव इन वाटर कंबाइंस टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. तो जो भी हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स हैं वो सिंगल H पॉजिटिव फॉर्म में नहीं होंगे, वो हमेशा एक्वस स्टेट में होंगे इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन और सिंपली इन दी फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव ions. So the properties of an acid are due to presence of H positive ions or the hydronium ions which it gives in the aqueous solution. जो ये aqueous solution produce करेगा, aqueous means when solvent used is water. Clear? So this dissociation of covalent molecule like HCl into the respective ions in presence of water is called as ionization. Now this reaction is termed as ionization of HCl into respective ions because this ionization takes place in the presence of water and this HCl is called as a covalent molecule. So this is termed as ionization of the respective compound. Next is dilution of acid. Dilution of concentrated acid. कैसा प्रोसेस होगा? दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. व्हेन वी dilute any concentrated acid, it was observed that the container in which the acid is diluted, the container sides becomes warm. कंटेनर की जो साइड्स हैं वो कैसे हो जाएंगी? गर्म. इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? वी कैन ऑब्जर्व दिस by simply touching the कंटेनर और बाय यूजिंग थर्मोमीटर. अगर हम सिंपली कंटेनर को बाहर से टच करते हैं तो कैसा होगा? वार्म. इट मीन्स उस केस में जो हीट है वो वहाँ पर क्या होगी? इन दिस केस हीट इज प्रोड्यूस, देयरफॉर रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. सेकेंड अल्टरनेट मेथड क्या है? वी कैन यूज़ थर्मोमीटर फॉर चेकिंग द टेम्परेचर. अगर हम इसके अंदर सिंपली थर्मोमीटर को डिप करते हैं तो राइज इन टेम्परेचर इंडिकेट करेगा रिएक्शन में कि हीट प्रोड्यूस होगी, देयरफॉर प्रोसेस इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर. नेक्स्ट है डाइल्यूट. तो हमने सब्सटेंस को इंडिकेट करते हैं कि डाइल्यूशन पे उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन डाइल्यूट कैसे करेंगे? हाउ टू डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज यूजफुल फॉर अस हाउ टू वर्क इन लेबोरेटरी विद डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड. सो इन डाइल्यूशन ऑफ एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. जब भी हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो रिएक्शन का नेचर कैसा होगा? हाईली एक्सोथर्मिक. सो इन दिस केस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस. तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट में हमारी हीट जो है वो इवॉल्व होगी और वी कैन से दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. अगर लार्ज हीट प्रोड्यूस होगी, इन दैट केस द हीट प्रोड्यूस्ड इज सो लार्ज दैट द सॉल्यूशन में स्प्लैश आउट. जो सॉल्यूशन जिसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं उसके स्प्लैशेज, उसके जो छींटे हैं वो हमारे फेस के ऊपर आ सकते हैं. स्प्लैश आउट और द ग्लास इन विच इट इज़ डाइल्यूटेड इट मे अंडरगो ब्रेकेज. तो ग्लास वहाँ पर ब्रेक भी हो सकता है. ठीक है. अगर ज़्यादा एक्सेसिव हीटिंग होगी, वहाँ पर हीटिंग लोकलाइज हो चुकी है, हमने उसको स्टर भी नहीं किया है, तो उस केस में वो लोकलाइज हीटिंग क्या करेगी? ग्लास को ब्रेक करेगी. क्लियर है. तो इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए जो हाईली क्या है? एक्सोथर्मिक. सो टू स्लो डाउन सच प्रोसेस वी यूज़ द फॉलोइंग मेथड. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर. सबसे पहले कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर हम क्या फिल करेंगे? वाटर फिल करेंगे. क्लियर है. फॉर स्लोइंग डाउन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड,
First of all, we will take sufficient amount of water in a container. Next point is, now we will add acid टू दिस कंटेनर कंटेनिंग वाटर. पहले हम कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर पहले वाटर ऐड करना है, रिवर्स नहीं करना है, हमेशा पहले क्या लेना है, वाटर. एसिड यहाँ पर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे. वाटर लेने के बाद अब इसके अंदर हम एसिड ऐड करेंगे स्लोली. नाउ स्लोली ऐड एसिड विद स्टरिंग. साथ साथ हमें स्टर करना है, स्टर की हेल्प से स्टरिंग करनी है. अगर हम स्टरिंग नहीं करेंगे तो उस केस में हीटिंग फिर से क्या हो जाएगी, लोकलाइज, और जो कंटेनर है वो टूट सकता है. क्लियर है पॉइंट. तो सबसे पहले हम वाटर लेंगे, उसके अंदर स्लोली स्टेप बाय स्टेप एसिड को ऐड करेंगे विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग. सो इन दिस केस वी कैन स्लो डाउन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ एसिड विच इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. रिवर्स कंडीशन हमें नहीं करनी है. अगर हम सोचेंगे कि पहले हम यहाँ पर एसिड फिल करें और बाद में इसके अंदर क्या ऐड कर दें, वाटर, तो इस केस में जो एसिड है कैसा रिएक्शन शो करेगा, एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करेगा. तो जो एसिड है वो किस फॉर्म में बाहर आ सकता है, स्प्लैश की फॉर्म में. स्किन को बर्न कर सकता है और जो क्लॉथ है हमारे उसको भी ये बर्न कर सकता है. सो द फर्स्ट मेथड इज द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड. क्लियर.